behind you. खुदा क्या करेगा? What God they said, खुदा आपको उठाएगा God will up you और आपकी जगह किसी दूसरे को खड़ा करेगा। and someone else stand in your seat. अगर कोई समझ रखता है तो इस बात को समझ ले। If any person has a wisdom, पिछले संडे पास्टर एंथनी ने मैसेज दिया था the last Sunday Pastor Anthony preached the gospel of God, और उससे पहले 2 संडे मैंने मैसेज दिया था। and before him, last two Sunday I preached the gospel of God. इस बात पर कि यीशु मसीह की जात के अंदर 2 जातें पाई जाती हैं। God has two nature in himself. एक तो वो इलाही खुदा है First of all, he is the only one God, और दूसरा कि वो एक कामल इंसान है। and second thing, he is the perfect human. He is the perfect man of God. फिर मैंने कहा था कि दुनिया एक बाग की सूरत है। And then I said that the world is like a garden. इसी तरह जब आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं, Same like that when we read the Bible, जब आप इस कलाम को पढ़ते हैं, when you read the Bible, तो कलाम भी एक गुलदस्ते की सूरत में है the Bible like that a garden, like a flower. और इसके अंदर से हर कोई अपनी मर्जी का फूल उठाता है। And in this side, everyone chooses his own flower. जो किसी को पसंद होता है वो ले लेता है। He like the flower, he choose the Bible. कुछ अपनी खुशी को पूरा करने के लिए, Somebody fulfill his joyful. कुछ बरकत लेने के लिए, Somebody need the blessings. कुछ उंगली उठाने के लिए। Somebody teach. Somebody choose his flower to teach the people. आप जिस माशरे में जिंदगी बसर कर रहे हैं, In society, you lead your life. आपके इर्द गिर्द बहुत सारी कौमें हैं Around people, there is many nations. और बहुत सारी जो कौमें हैं वो आपके ईमान के ऊपर मुख्तलिफ बातें कर रही हैं। And many nations teach you in your belief. जैसे कि लोग यीशु मसीह पर बात करते हैं, Same like that, people speak about God. वैसे ही जो यीशु पर ईमान रखते हैं लोग उनके साथ उनकी जात पर भी बात करते हैं। Same like that, there people who believe the God, they also talking about them. कोई आपसे कहेगा Somebody said to you, कि आप यीशु मसीह को क्या मानते हैं? somebody say to yes, somebody say to you, what is the God? आपका जवाब क्या होगा? What you answer them? अगर कोई आपसे पूछे कि आप यीशु को क्या मानते हैं, If somebody asks you, what is God before you? अपना मुन्ना जी अपना मुन्ना जी He आप is, क्या मानती he हैं? is my God. हमारा जाते ही था He is my Savior. मसीह खुदा। He is the Lord. यानी कि ज्यादातर जो अक्सरियत है वो ये कहेगी कि यीशु मसीह मेरा खुदा है। Many people say that God is our Lord. यीशु मसीह में मुझे खुदा नजर आता है। In Him I see the Lord. यीशु मसीह की जात के अंदर हमें खुदा नजर आता है। The nature of Christ to see the nature of God. तो फिर वो आपसे कहेंगे Then they say to you, कि बाइबल के अंदर in the Bible, हम ये प्रूफ देते हैं, we prove that, हम ये बताएंगे we tell that कि यीशु मसीह की जात के अंदर खुदा नहीं there is no nature of God in Him. बल्कि यीशु मसीह एक नबी है। Jesus Christ is the prophet. यीशु मसीह आम नबियों की तरह एक नबी है। Jesus Christ is the prophet, like that the common prophet. आप कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है। You say that that's not good. वो आपको बाइबल मुकद्दस में से 6 हवाला जात देंगे। They give you the 6 reference of the Bible. वो आपसे कहेंगे They say to you, कि ये उन लोगों के स्टेटमेंट है they say that this is the statement of these people. जो यीशु मसीह के साथ रहे हैं, They spend their lives with the Christ. जो यीशु मसीह के साथ बैठते उठते रहे हैं, They spend their time with Jesus Christ. जो यीशु मसीह के साथ खाते पीते रहे हैं, Eat with them. जो यीशु मसीह के साथ जमीनी खिदमत में शरीक थे। They include with Jesus Christ in service of the earth. अगर आप यूहन्ना की इंजील देखते हैं, If we see that the Gospel of John, अगर उसका 4 बाब देखते हैं, chapter number 4, उसकी 19 आयत देखते हैं, verse number 19, तो वहां पर एक सामरी औरत यीशु मसीह के साथ मुखातिब है।
we find there is a woman of Samri, और यीशु मसीह एक कुएं पर बैठे हैं and Jesus Christ sit down on a और water. यीशु मसीह उससे कहते हैं कि मुझे पानी पिला। And Jesus Christ said to her, "Give me the water." तो वो कहती है कि मैं सामरी हूँ, तू यहूदी है। He said that I belong to Samri and you belong to Jude. तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांगता है। How did you say that? Give me the water. यीशु कहते हैं कि अगर तू जानती। Jesus said to her, "If you know that who I am." यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तू जानती कि मैं कौन हूँ, Jesus said to her, "If you know that who I am." अगर तू जानती कि खुदा की बख्शिश क्या है, If you know that the blessing of God. अगर तू मेरी जात के तलक से जानती If you know that the nature of God. तो तू मुझसे मांगती, And then you give me the water. You ask me, "God, give me the water." तो मैं तुम्हें जिंदगी का पानी देता, And then I give you the eternal water. जो तेरे अंदर से नदियां जारी करता। Which water spring up in yourself, the stream of water. औरत यीशु मसीह की बातें सुनती है, And she hears the words of God. वो कहती है कि तू हमारे बाप यकूब से बड़ा है, She said to her, "You are greater than our father of Jacob, जिसने हमें ये कुआं दिया who gave us the water hole, और हमारे बाप दादा ने इस कुएं में से पिया and our father, और हम पी रहे हैं। and our father saved everything this water, and as well we also." यीशु मसीह कहते हैं कि जो पानी मैं तुम्हें दूंगा Jesus Christ said to her, "Which water I give you, वो तुम्हारे अंदर से नदियां जारी करेगा। he spring up in yourself the stream of water, जिंदगी की नदियां जारी करेगा। the water of life, थोड़ा आवाज में कम पैदा the करो। water of life spring up in yourself." वो औरत कहती है कि तेरे पास तो कुछ नहीं, She said to him, "You have nothing. ये कुआं गहरा है, This water hole is very deep. तू वो पानी मुझे कैसे देगा? How can you give me the water?" वो बातें करते करते जब आगे चलते हैं Then he passage of the time. तो औरत कहती है Then she said to him, कि मैं महसूस कर रही हूँ, "I perceive that, मैं समझ रही हूँ I know that कि तू एक नबी है। you are the prophet." क्यों? Why? क्योंकि यीशु ने उसे बताया था Because Jesus, कि तू पांच शोर कर चुकी है you have a 5 husband, और जिसके पास तू अभी है वो भी तेरा शोहर नहीं है। and right now वो इतनी सी बात सुनकर यीशु पर ईमान ले आई थी she heard that word and believed in him, और कहने लगी कि मैं जानती हूँ, मैं समझ रही हूँ कि तू एक नबी है। and she said to that, and she said to him, "I perceive that you are the prophet." पहली बात वो आपसे ये करेंगे कि ये हवाला है कि यीशु एक नबी है। First of all, they tell you this is the reference of Jesus Christ as the prophet. फिर यूहन्ना की इंजील उसका 9 बाब उसकी 11 आयत में आपको एक हवाला देंगे। Then we read the Gospel of John, chapter number 9. वहाँ पर एक अंधा शख्स है, We find a blind man. उस अंधे की यीशु मसीह आंखें खोलते हैं Jesus Christ has opened him eyes. और वो दिन सबत का होता है That day is the day of Sabbath, और वो अंधा हैकल के अंदर घूम रहा होता है। and the blind man, लोग उसे देखते हैं, people see him, लोग उसे देखकर कहते हैं कि ये वही नहीं जो जन्म का अंधा था, people say him and say to him, "He is the blind man, ये वही नहीं जो भीख मांग रहा होता था। he is a beggar." लोग उसे फकी फरीसियों के पास ले जाते हैं। People take him to the Pharisees. फकी फरीसी उसे देखकर कहते हैं Pharisees said to him, कि ये कैसे हो गया, "How can this possible? ये कैसे मुमकिन है How can this possible? कि तू जो पैदा ही अंधा हुआ था, You are born in, तेरी आंखों के ऊपर तो कोई निशान भी नहीं था no sign in your eyes, और आज तू देख रहा है। but today you live, today you see everything." तो वो कहते हैं कि तेरी आंखें किसने खोली? They said to him, "Who person opened your eyes?" वो यीशु मसीह के बारे में बताता है। He tell them about the Christ. फकी फरीसियों में आपस में बहस होती है। There is a quarrel about among the Pharisees. उस अंधे के माँ बाप को बुलाया जाता है। There is the father of the blind man come down. उनसे पूछा जाता है, They ask them. तो वो कहते हैं कि ये आपके सामने खड़ा है, They tell them. इससे "He stand पूछे। before you."
asked them, तो जब उससे पूछा जाता है कि तू उस शख्स के बारे में क्या कहता है जिसने तेरी आंखें खोली, when asked them, what you say about that person who opened your eyes? तो वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो एक नबी है। He said them, I know that he is a prophet. वो भी यीशु मसीह के हक में कहता है कि वो एक नबी है। He's saying about the Christ, he is a prophet. जब आप देखते हैं लूका 9:17 में, When we see the Gospel of Luke, chapter number 9, तो वहां पर भी यीशु मसीह को नबी कहा गया है। there is saying that God is prophet. यीशु मसीह जो काम करते थे, जो मौजज़ात करते थे, Jesus Christ's days were through. लोगों पर दहशत छा जाती थी, People fearless. लोग खौफजदा होते थे। People fell in fear. लिखा है वहां पर कि लोग कहते हैं कि हमें मालूम होता है कि ये एक बड़ा नबी हम में बर्पा हुआ है। Written in the Bible, people says that he is the big prophet. फिर चौथा हवाला हमें लूका 24 में मिलता है। And when we read the, वहां पर यीशु मसीह को काम और कलाम करने वाला, कुदरत वाला नबी कहा गया है। there is the people says that he is the bigger, he is the works, wonders. फिर मत्ती 21 में हमें मिलता है कि वो गलील और नासरत का नबी है। When we read the Gospel of Matthew, there is written, he is the man of Nazareth. फिर छठा हवाला जो हमें मिलता है मत्ती 13:57 में मिलता है। Sixth reference is a Matthew, reference of Matthew, chapter number 13, verse number 57. वहां पर यीशु मसीह अपने इलाका के अंदर हैं There is Jesus Christ in over his area, और यीशु मसीह के अपने लोग यीशु को कबूल नहीं करते। and his over people not receive him, not embrace him. और यीशु मसीह अपने इलाके से निकलते हुए ये स्टेटमेंट देते हैं When he, Jesus Christ, go away from his area, he says that कि नबी अपने मुल्क में और अपने इलाका के अलावा कहीं पे इज्जत नहीं होता। the prophet cannot receive the honor over his area. इन बात को देखते हुए लोग कहते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह ने खुद को नबी कहा है। When we see that, the people say, Jesus Christ said that, I am the prophet. अगर आप इब्रानी जुबान में देखें If we see that the words of Ibrani, तो नबी के तलक से जो 3 अल्फाज हमें मिलते हैं, there is a 3 words which we use to same mean. पहला जो मिलता है नबी के तलक से वो है रोहे, First of all, we found that word that mean rohe. जिसका अहद अतीक में 9 बार जिक्र हुआ है There is used 3 times in the Old Testament. और आगे चलकर इब्रानी में जो दूसरा लफ्ज हमें मिलता है When we go ahead, we found some नाबी, Nabi. जिसका मतलब है खुदा के लिए काम करने वाला। That mean who person to call to God people. और तीसरे नंबर पे जो इब्रानी में इसका मतलब है वो है खूजा। Third number, Hebrews mean. इन तीनों का एक ही मतलब है, There is 3 words but same meanings. खुदा का राह तैयार करने वाला, Make the God way, खुदा का काम करने वाला, work the God, खुदा की मर्जी लोगों तक पहुंचाने वाला। achieve the God's will to the people. अगर हम नबी के फराइज देखें If the responsibility of prophets, कि खुदावंद की जात को और खुदावंद की खुसूसियात को बयान करने वाला, describe the abilities of Christ. खुदा ने जो कलाम माजी में किया है What words God spoke in the past, उसकी तशरीह करने वाला, describe that words. आने वाले गज़बे अल्लाही से आगाह करने वाला, Aware their people from the destructions. जन्नत और फरदौस की खुशखबरी देने वाला। Give them the good news of heaven. मगर जब हम देखते हैं यीशु मसीह को, But when we see the Jesus जिसके Christ, मुतल्लिक कहा जाता है कि वो एक नबी है, people say about them, he is the prophet. जिसके मुतल्लिक कहा जाता है कि यीशु नबी से बढ़कर कुछ नहीं है, People says that he is not greater than prophet. जिसे दूसरे नबियों के बराबर समझा जाता है। People consider him equal the other prophets. जब आप बाइबल मुकद्दस खोलते हैं, When we open the Bible, जब पैदाइश की पहली
किताब देखते हैं, when we see the book of उसका Genesis, पहला बाब पहली आयत देखते हैं, when we see the first verse of Genesis, तो हमें मिलता है when we found that कि दुनिया में कुछ नहीं था, there is nothing in the हर तरफ पानी पानी था, हर तरफ अंधेरा था, ना जमीन थी, there is no ना earth, आसमान था, there is no heaven, कुछ भी नहीं था। there is nothing. लिखा है कि खुदावंद खुदा की रूह There is written the Spirit of God, पानियों की सतह पर जुम्बश करती है। His walk on the waters. इसका मतलब है कि जो आज लोग यीशु मसीह को फक्त नबी कहते हैं, That's mean that today's people who consider them, वो इस बात को भूल जाते हैं कि जब दुनिया का शुरू था, दुनिया में कुछ भी नहीं था, तो यीशु मसीह अज़ल से था। they forget that when the beginning there is nothing except God. फिर भी And then हम आगे चलते देखते हैं, we go ahead and see that यीशु मसीह के तलक से according to the Christ और आम नबियों के तलक से and according to the prophets, पहली बात देखें, first of all, नबी अज़ली नहीं है। prophet is not belong to the beginning. अज़ल से मुराद के नबी अज़ल से यानी कि इब्तिदा से नहीं है, Beginning mean that started, मगर यीशु मसीह अज़ल से है। but the Jesus Christ from the beginning. यीशु के तलक से यूहन्ना कहता है कि इब्तिदा में कलाम था, According to the Christ, John says that इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, beginning in the earth there is a word and words with the God. यानी कि कुछ भी नहीं था मगर यीशु मसीह मौजूद था। It's mean that there is nothing but Jesus Christ remained there. दूसरी बात देखें, Second thing, नबी prophets, औरत और मर्द के मिलाप से पैदा हुए। prophets were born with the male and female. कोई भी नबी औरत और मर्द के मिलाप के बगैर पैदा नहीं हुआ, There is no prophet who born without मगर female. यीशु मसीह कुंवारी से पैदा हुआ। But Jesus Christ were born with the Genesis. यीशु मसीह किससे पैदा हुआ? यीशु मसीह किससे पैदा हुए? यीशु मसीह कुंवारी से पैदा हुए। Jesus Christ. यीशु मसीह औरत की नस्ल से पैदा हुए। Jesus Christ born with the. दुनिया के अंदर दो नस्लें काम कर रही हैं, There is a two generation birth in the एक world. औरत की नस्ल है, एक सांप की नस्ल है। First of all, the generation of the woman, and second, the generation. आप मुबारक लोग हैं You are the blessedful people. कि आप औरत की नस्ल से हैं। You are belong to the. आप male. सांप की नस्ल के दुश्मन हैं। You are the enemy of nation of. तीसरी बात देखें, There is third thing. तमाम नबी खुदा के हुक्म से मोजज़ात करते थे। There were many prophets command with the. यीशु मसीह अपनी कुदरत से मोजज़ा करता था। But Jesus Christ do the miracle with his own authorities. नबी खुदा से रिक्वेस्ट करते थे, The prophets were request before of the Christ. यीशु मसीह वहां पर खड़े होकर कहते थे और हो जाता था। Jesus Christ standing there and said that. आप बताएं, Tell me, क्या यीशु मसीह आम नबियों की तरह है Jesus Christ is a prophet या फिर यीशु मसीह अज़ली हैं? or Jesus Christ is the belong to beginning? चौथे नंबर पर Fourth thing, तमाम नबी कहते थे कि खुदा फरमाता है। there is many prophets say to use to. खुदा ने ये कहा है, Jesus says that. खुदा ये करेगा, Jesus will do. खुदा वहां पर होगा। Jesus will there. मगर यीशु मसीह कहते थे कि मैं तुमसे कहता हूँ। But Jesus said. यीशु I क्या say कहते to थे? you, मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ, I am. मैं मौजूद हूँ। I am here. खुदा मूसा से कहता है, God says to Moses. जाके फरौन से कह मैं जो हूँ सो हूँ। Go to Pharaoh and say to him, I am. यीशु कहते हैं कि मैं हूँ। Jesus says that I am, so I am. पांचवें नंबर पर Fifth thing, नबी को अपनी कुदरत पर अख्तियार नहीं। the prophets were no authority on their abilities. नबी को अपनी कुदरत पर अख्तियार नहीं। Prophets were no authorities on their power. यीशु मसीह को अपनी कुदरत पर अख्तियार है। But Jesus Christ have authorities of their power. वो हवा को डांटते हैं और हवा रुक जाती है। He said to wind, वो stop. समंदर को डांटते हैं, समंदर साथ
पहाड़ों को डांटते हैं, पहाड़ थरथराना शुरू कर देते हैं। He commands to mountains. नबी उन पहाड़ों के अंदर ना अपना सर घुटनों के अंदर देकर छुप जाते थे। In their mountains, the prophet spoke. यीशु उन पहाड़ों के सामने खड़ा होकर उनको डांट रहा होता है। Jesus stand before the mountains and command it. क्यों? क्योंकि हर एक चीज जो इस दुनिया के अंदर आई वो यीशु मसीह के बगैर नहीं आई। Because everything on the earth, everything belong to the Christ. हर एक चीज जो इस दुनिया में आई ये यीशु मसीह की मर्जी से आई। Everything come in this world is the will of God. छठे नंबर पर Sixth thing, नबी किसी इंसान के दिल को दरियाफ्त नहीं कर सकता। prophet cannot proceed at the human heart. यीशु मसीह इंसान के दिलों गुर्दों को जानने वाला है। Jesus Christ know that everything about human heart. यीशु मसीह जान रहा है कि कितने यहाँ पर मौजूद हैं। Jesus Christ know that. यीशु जान रहा है कि कितने यहाँ पर हैं जिनके जिस्म यहाँ पर है मगर इनके दिल, इनकी सोच, इनकी अकल यहाँ पर नहीं है। Jesus Christ know that how many people there in spiritual. यीशु मसीह के अलग से इस्लामी लोग भी कहते हैं According to the Christ, our Muslim brother says that कि यीशु के अंदर ये खूबी थी, Jesus Christ have ability. यीशु के अंदर ये अख्तियार था Jesus Christ have a authority. कि अगर कोई शख्स अपने घर में कोई चीज रख के आ जाता If any person Yeah. whatever his home, या फिर अपने घर के अंदर कोई काम करके आता whatever he do his own house, तो वो जब बाहर आता तो यीशु से जब बात करते तो यीशु बता देते थे कि वो घर में ये करके आया है। and whenever he come out from his house and talk to God and God tell him what to do in your house. यानी कि जो यीशु पर ईमान नहीं रखते वो भी इस बात को कहते हैं कि यीशु में ये कुदरत है। That means that whoever does not believe in himself but they claim that he have a ability to proceed the thing. सातवें नंबर पर Seventh thing, नबी इंसान के गुनाह माफ नहीं कर सकते। prophet cannot forgive the sins of humans. यीशु कहता है कि उठ अपनी चारपाई उठा और चल फिर जा, दोबारा गुनाह ना करना। Jesus Christ said that get up and put your bags and go and no more sin again. फकीर फरीसी कहते हैं कि ये कुफर पक्का है। Pharisees say that गुनाह माफ करना सिर्फ खुदा का काम है। forgiveness the sin is work of God, not of man. ये अपने आप को खुदा के बराबर बनाता है। He consider himself equal to God. यीशु क्या कहते हैं? Jesus says that आसान क्या है? what is the easy way? जा ये कहना कि जा तेरे गुनाह माफ हुए, Is it that go and no more sin again? मगर वो यीशु मसीह की बातों का जवाब नहीं थे दे पाते। But they cannot reply the Jesus But- Christ. आगे चलकर अगर हम देखते हैं 8वीं बात, There is eighth thing. कोई नबी मरकर जिंदा नहीं हुआ। There is no prophet who died and again rise up. यीशु मसीह आपके सामने मरा, But Jesus Christ, दुनिया के सामने सलीब पर चढ़ा, he gave his life on the cross. यीशु मसीह को कब्र में उतारा गया। He go to the grave. यीशु मसीह 3 दिन के बाद मौत और कब्र पर फतह पाकर जिंदा हो गए। He risen after 3 days. ना सिर्फ के जिंदा हुए बल्कि अपने शागिर्दों पर जाहिर हुए। Not only he is risen, but he appeared on his disciples. पौलुस कहता है कि वो 500 से ज्यादा को दिखाई दिया Paul said that he is seen और वो 40 दिन तक अपने लोगों के साथ उठता बैठता रहा, खाता पीता रहा। in 40 days he with these people. 9वीं बात, Ninth thing, किसी नबी की कब्र खाली नहीं है। there is no prophet. जो कहते हैं ना यीशु नबी है, There's people who said God is prophet. जो यीशु मसीह की जात को, यीशु के कद को नबी के साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। Who compared with the prophet. वो लोग इन बातों को अपने जहन में रख लें The people keep these things in their minds. कि किसी नबी की कब्र खाली नहीं, There is no prophet. वो किसी मजहब का है, His belong which. वो किसी कबीले का है, His belong which tribe. वो कोई भी जुबान बोलने वाला His है, belongs to which language. हर एक कब्र के अंदर पड़ा है। Every prophet lay down in their graves. मगर जब यीशु की कब्र की बात आए But when we talk about the
grave of God, जब नजारा यीशु की कब्र का करना हो when you see that the grave of Christ, तो कब्र तक पहुंचने से पहले ही then we reach the grave of God. हमको एक स्टेटमेंट मिलती है, Before एक तख्ती का सामना करना पड़ता है। the statement, उस पे लिखा हुआ है, there is written, जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढते हो? where you find the alive person. वो यहाँ पर नहीं है, He is not here. वो अपने कहे के मुताबिक जी उठा है। He has just done as he said. नबी कब्रों में पड़े हैं, Prophet laid down in their graves. यीशु मसीह जिंदा है। Jesus Christ is alive. ना सिर्फ केवल जिंदा है बल्कि हर जगह पर वो हाजिर व नाज़िर है। Not only he is present, but he is present everywhere. उसने कहा है कि मैं अब से हमेशा तक तुम्हारे साथ हूँ। He says that I am with you. कोई मुर्दा ऐसा दावा नहीं कर सकता There is no that say that I am with you evermore. कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। I am with you evermore. जिंदा ही जिंदों के साथ रह सकता है। But this person who said I am with you because they is alive. 10वीं बात, 10th thing, कोई नबी जिंदा होकर आसमान पर नहीं गया। there is no prophet who risen and went to the heaven. फिर कहता हूँ, कोई नबी I say again, no prophet. जिंदा होकर आसमान पर नहीं गया। I say you again, no prophet risen and went to the heaven. यीशु मसीह जिंदा होकर खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठे। Jesus Christ has risen and went to the heaven and sit down the right side of God. वहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाले हैं। He come again in the world to judge the good people and bad people. 11वीं बात, 11th thing, बस 4 ही रह गई हैं, परेशान ना हो। 11वीं बात, 11th thing, कोई नबी अपनी उम्मत की शिफायत नहीं करता, there is no prophet to speak about favor of their people. मगर यीशु मसीह ने अपने लोगों की आसमान पर जाकर खुदा की दाहिनी तरफ बैठकर शिफायत की। But only the one खुदा ने whose name खुदा is से Jesus. कहा They said to the God, कि ऐ बाप, our Father, ये लोग मेरे हैं, these people is me, इन्हें एक बार माफ कर दे। give them इनके लिए मैंने अपनी जान दी है, I give my life for these people. इनके लिए मैं कुर्बान हुआ। I give sacrifice for these people. 12वां पॉइंट, That 12th thing, कोई नबी दुनिया की अदालत नहीं करेगा, there is no prophet to judge the world. बल्कि जब अदालत होगी तो नबी आम लोगों की तरह अदालत के तख्त के सामने खड़े होंगे। But when the days come to judgment, the prophet, same common people, मगर यीशु मसीह अक़वाम आलम की अदालत करेगा। but Jesus Christ come to the world and judge the all around world. हर एक कौम, Every nation, हर एक कबीला, every tribe, हर एक जुबान रखने वाला शख्स यीशु मसीह की अदालत में खड़ा होगा। every person who have the tongue, जो पहले मर चुके हैं वो भी उठ खड़े होंगे। these people who died, कलाम कहता है कि समंदर अपने अंदर के मुर्दे देगा, Bible says that the sea come out from that, फिजा अपने अंदर के मुर्दे देगी, the air come out from the dead, जमीन अपने अंदर के मुर्दे देगी, the earth come out from the dead, और हर एक यीशु मसीह के तख्ते अदालत के सामने खड़ा and होगा, every person stand before the, और हर एक की अदालत होगी। and every person judge. क्या यीशु कुछ छोटा नहीं है? Your God is not, आपका यीशु छोटा नहीं है, your God is not less than. आपके यीशु के लेवल का कोई नहीं है। There is no person to level to be. आपका यीशु यूनिक है, Your God is unique. यानी कि यूनिक का मतलब कि अकेला ही है। Unique means that only one person. उस जैसी कुदरत किसी के पास नहीं। There is no power same like. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. एक दूसरे के लिए जरा क्लैपिंग करें। Clap for one. अब यीशु मसीह के लिए करें। यीशु मसीह जो यूनिक है, जो अकेला है। Jesus Christ is unique. He is begotten Son. 13वीं बात, Third thing, कोई नबी हाजिर व नाज़िर नहीं हो सकता। there is no prophet is present. क्यों? क्योंकि वो इंसान है, वो जहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर खड़े रहेंगे। Why? Because the man there is stand, he not cannot. वो जहाँ पर पड़े हैं वहाँ पर पड़े रहेंगे। He stand there, he cannot move there.
मगर यीशु मसीह कहते हैं But Jesus says that जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, there is 2 or 3 person किसके नाम से? the name of Jesus. किसके नाम से? यीशु के नाम से। यीशु कह रहा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे, मैं वहां पर क्या हूँ? Jesus says that there is 2 or 3 people assemble the name of Jesus. I am here. कितने लोग ईमान रखते हैं कि यीशु How many मसीह people है? believe that? यीशु नाम के लिए जोरदार कर। Clap for the Christ. 14वीं बात, 14th thing, नबी को सजदा करना कुफर है। there is not lawful bhokta. नबी एक इंसान की सूरत है, एक इंसान है, उसे जो सजदा करना है ये शिर्क के बराबर है, ये खुदा को पसंद नहीं है। Prophet is like a human. There is no lawful to bow of the prophet. मगर कलाम मुकद्दस कहता है कि यीशु मसीह को सजदा करना आपकी मुकम्मल इबादत है। But Bible says that bow your head front of the God it is your. अगर आप यीशु को सजदा नहीं करते, If you do not bow of your heads front, अगर आप यीशु के आगे झुकते नहीं हैं, if you not bow your heads of God, तो आपकी इबादत मुकम्मल नहीं। your worship is not perfect. मुकाशवा अगर आप पढ़ते हैं If we read the Revelation, कि हजारों हजार, thousand people, लाखों लाख many people, many जो people, सरफीन है, जो कदूसी हैं, जो करूबी हैं, there is Saktadusi, उस बर्रे के आगे झुकते हैं, he stands before the, उस बर्रे को सजदा करते हैं, go down this उस hand, बर्रा की तमजीद करते हैं worship of him, और उसे मुबारक कहते हैं। and the blessed him. आखिरी बात, There is last thing, किसी नबी ने कभी दावा नहीं किया, there is no prophet to say that, मगर यीशु मसीह ने ना सिर्फ ये दावे किए बल्कि उन दावों को पूरा किया। but Jesus Christ says that I am, so I am. यीशु मसीह ने हवा में बातें नहीं की, Jesus Christ no talk in the airs. यीशु मसीह बात करके मुकर नहीं गए, Jesus Christ not speak and then he move. बल्कि जो बात कही वो पूरी करके दिखाई। But whatever he said, he done it. यीशु ने कहा कि मैं बाप में से निकला हूँ। Jesus Christ says that I come out from Father. जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा Who है। has seen me, he has seen the Father. क्यों? बाप मुझ में है, Because Father in me मैं बाप में हूँ, and I am in the Father. बाप और मैं एक हूँ। I am and the Father same. किसी नबी ने कहा कभी? किसी नबी ने कभी खुदा को बाप ही कहा हो? And the prophet says that Father. किसी नबी ने कभी खुदा जैसा होने का दावा किया हो? And the prophet says that I am same like the God. मगर यीशु कहता है कि मैं बाप में से निकला हूँ। But Jesus Christ says that I come out from the Father. यीशु कहते हैं कि बाप मुझ में है। Jesus Christ says that Father in me. यीशु कहता है जिसने मुझे देख लिया उसने बाप को देख लिया। Who has seen the Father, he has seen the Father. क्यों? Why? क्योंकि हम एक हैं। Because we are one. हम क्या हैं? हम एक हैं। What we are one. किसी नबी ने कभी ऐसा दावा किया? Any prophet says that. कभी आपने सुना हो? Any person hear these words? फिर यीशु कहते हैं कि राह और जिंदगी मैं हूँ। And then Jesus Christ says that I am the way and the life. जो कोई मेरे पास आएगा वो जिंदगी में दाखिल होगा। Who has come to me and I will give him the eternal life. किसी नबी ने कभी कहा कि चल मेरे नाम मैं तेरे जिंदगी दवाऊंगा। Any prophet says that come to me and I will give you the life. चला ऐस रास्ते से चलिए, ऐस रास्ते से जिंदगी मिलनी है। Come on this way. किसी नबी ने कभी दावा किया? Any prophet says that तो फिर आपका यीशु अफजल है, your Lord is the one. आपका यीशु उत्तम है, Your Lord is the higher Lord of all. आपका यीशु यूनिक है। Your Lord is the holy. फिर लिखा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। I am the good shepherd. किसी ने कहा क्या मेरे लोग आपका अच्छी देखभाल करने वाला मैं हूँ? Any prophet says that you किसी are नबी ने my कहा, and I am your shepherd. मगर यीशु ने कहा है, But Jesus says that. यीशु ने कहा है कि अपना बोझ मुझे दे दो, Jesus Christ says that give me your burden. मेरा जुआ उठा लो, Give me your burden. मेरा जुआ मुलायम है, I will give you the rest. इससे आप थकेंगे नहीं।
You will not die. इससे आप परेशान नहीं होंगे, You will not tremble. इससे आप खुश रहेंगे, You will इससे rejoice. आप हार रहेंगे, You will stay. इससे आप बरकत पाएंगे। You will give the blessings. फिर यीशु ने कहा है कि ऐ बोझ के थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, And then Jesus Christ says, "Come to me. मैं तुम्हें आराम दूंगा। I will give you the rest." किसी नबी ने ऐसा कहा? Any prophet says that. किसी नबी ने कहा? Any prophet says that. अगर कोई नबी ज्यादा आपके लिए कर सकता है तो वो ये कर सकता है, चल मेरे नाल मैं तेरी रोटी खवाता शाम की, There is prophet who says that, "Come with me and I चल मेरे साथ मैं तेरे पाँव धो दूं, come with me and I wash your feet. चल मेरे साथ मैं तेरी देखभाल करूं। Come with me and I take after you." मगर कोई नबी ये नहीं कहेगा कि अपना बोझ मुझे दे दे, But there is no prophet who says that. अपने गुनाह मुझे दे दे, Give me your sins. अपनी खताएं मुझ पे डाल दे Give me your mistakes. और मैं तेरे लिए कुर्बान हो जाता हूँ। And I will sacrifice for you. फिर यीशु ने कहा क़यामत और जिंदगी में And then Jesus Christ says that, "I am the resurrection and the life. मैं जब चाहूं When I am, इस दुनिया में क़यामत ले आऊं। सादे लफ्जों में कह रहा हूं। whenever I want." वैसे तो क़यामत का मतलब है क़याम करना, उठ जाना, खड़े हो जाना। Resurrections mean that sustainable. मैं जब चाहूं Whenever I want, इस दुनिया में क़यामत ले आऊं। I come in the world. मैं जब चाहूं आपको जिंदगी में दाखिल कर लूं। Whenever I want, I give you the life. सादे लफ्जों में कि अख्तियार मेरे पास है। In the simple words, the authority it belongs to me. आसमान और जमीन का कुल अख्तियार All authorities of the heaven and the earth, मुझे दिया गया है। it is me. ये किसने कहा है? ये आपके यीशु ने कहा है। Jesus says that. ये किसी नबी ने नहीं कहा। No. आज कोई यीशु मसीह को खड़ा करके और उसे नबी के साथ तशबीह देता है तो उसकी रूहानी आंखें बंद है, Two little people stay with the God and says that he is a prophet. या फिर वो यीशु मसीह की जो दर हकीकत कुदरत है उससे नहीं देखना चाहता। He cannot see the power of Christ. फिर लिखा है कि जो मुझ पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं। And there is written, "Who believes to me, there is not seal to that." नबी ये नहीं थे कहते कि मुझ पर ईमान रखो, Prophet not says that. नबी कहते थे कि मुझे खुदा ने भेजा है, Prophet says that. आप खुदा पर ईमान रखें। Believe on God. मगर यीशु कहता है कि जो कोई मुझ पर ईमान लाता है वो उस पर सजा का हुक्म But नहीं है, Jesus says that whoever believes to me, he will never put to punish, बल्कि वो जिंदगी में दाखिल हो but he गया। will enter the eternal life. सजावां मुक गईयां, Punishment is end. वो शख्स जिंदगी में आ गया है। His person entered the eternal life. उसने किया क्या है? What he do? उसने यीशु पर ईमान रखा है। He believe on the God. अगर आज पूरी करें तो लिखा है अगर वो मर जाए तो भी मुझ में जिंदा रहेगा। If we complete the verse, कौन? जिसने ईमान रखा है। there is written, "If we dead, but he in alive in me." अगर कोई जिंदा है तो वो अब तक ना मरेगा। If anyone alive, he will never dead. अगर आप अपनी जिंदगी हासिल करना चाहते हैं, If you receive the eternal life, अगर आप चाहते हैं कि आप यीशु मसीह के साथ रहें, if you want to be the Christ, अगर आप चाहते हैं कि जैसा वो जलाली है और उसको उसके जलाल में देखें, if you want to see him, his glory, तो आप यीशु मसीह को आम नबियों से तशबीह ना दें। you cannot compete with Christ, a common prophet. यीशु मसीह बाप में से निकला है, He's come out from Father. यीशु मसीह बाप जैसा है, He's same like the Father. यीशु मसीह ही ओनली वन खुदा है। Jesus Christ is only one person who is a holy, who is unique. He is above all the God in the world. अगर आपसे कोई कहे कि आपका यीशु नबी है If any person says to you, your God is a prophet, तो आप कह सकते हैं and then you says that कि जो शख्स सलीब पर अपनी जान दे रहा है whose person gave his life on the cross, और जब वो चिल्लाया and then he shout out, तो उसकी आवाज मुर्दों के कानों में पड़ी, and then his voice. तो कलाम कहता है कि मुर्दे जी उठे। And Bible says that अगर उसकी जान देने से जिंदगी आ रही है if he give us his life and then the life comes out, तो सोचें कि वो फिर कोई आम शख्स नहीं है। and then we need to think
that he is not. वो बहुत खास है There is a special. कि जिसकी आवाज से, जिसकी जान देने से मुर्दों के अंदर जान आ रही है। There is a special person which voice has a life. खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और आप हमेशा अपने ईमान पर कायम रहें और हमेशा यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में रख कर अपनी जिंदगी बसर करें। God give you the blessing and give you the chance to believe on Him and believe on Him and stay stable in your belief. आमीन।